السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج میں آپ لوگوں کا لاسٹ لیکچر جو ہے وہ آپ لوگوں کو دوں گی یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کا. یہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، کمپیریزن کر رہے تھے دو زمانوں کا. دو زمانے یعنی اسٹرکٹلی ہم نہیں کہہ سکتے یہ دو مختلف زمانے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ وہ پچھلا دور جہاں اب سائنسی ترقی اتنے عروج پر نہیں تھی یا سائنسی ترقی کا آغاز ابھی ہو ہی رہا تھا، اور اب کا دور جس کو ہم ماڈرن ایج بھی کہتے ہیں، جس میں سائنس جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ عروج حاصل کر چکی ہے. تو سائنسی طریقہ کار کا استعمال اب ہماری زندگیوں کا جبکہ عملی ایک حصہ بن چکا ہے. تو اس میں ہم نے بہت ساری تبدیلیاں ہم نے نوٹ کی، جن میں ہم نے دیکھا کہ پہلے بیماریوں پر اتنا اچھا کنٹرول نہیں تھا، لیکن اب بیماریوں کی نہ صرف تشخیص ہو سکتی ہے بلکہ ان کے لیے بہت ساری میڈیسنز اور ڈرگز بھی اویلیبل ہیں جس سے ہم جو ہے وہ ان بیماریوں پر قابو پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ ہاسپیٹلس وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، لیکن اب جو ہے وہ اسپیشلی نیو بورن بیبیز کے لیے ایک بہت اچھا ماحول میسر ہوتا ہے جب ان کی پیدائش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ اب بہت ہی کم رہ گیا ہے نیو بورن بیبیز میں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مور فوڈ اور بیٹر فوڈ میں ہم نے کیا یعنی کامیابیاں حاصل کی ہیں، کس طریقے سے ڈائیورسٹی آف فوڈ ہمیں اویلیبل ہے جو کہ ہمیں ماضی میں نہیں تھی، اور کس طریقے سے ماضی میں ہمیں ورائٹی آف فوڈ میسر نہیں تھی جو کہ اب میسر ہے، اور کوانٹٹی بھی اب زیادہ جو ہے وہ اچھی ہو گئی ہے پیداوار کی. جیسے ہم مختلف پیسٹیسائڈس کا اور مختلف قسم کی کھادوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے بہت ساری جو ایوریج ہے کراپس کی وہ بڑھ گئی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ ہمیں ماضی میں اتنا خالص میسر نہیں تھا اور زیادہ مقدار میں میسر نہیں تھا جتنا کہ اب ہمیں ہمارے گھروں تک میسر ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یعنی صفائی کے حالات جو ہمارے ماضی میں بہت خراب تھے وہ اب ماضی کی نسبت بہت حد تک جو ہے وہ امپرووڈ ہو چکے ہیں، بہت اچھے ہو چکے ہیں. سوائے چند ایشین کنٹریز کو چھوڑ کے، ہم جیسے ممالک کو چھوڑ کے، جہاں کے گاؤں کے حالات ابھی بھی ویسے ہی ہیں جو کہ اس ٹائم کے بڑے شہروں کے حالات تھے. اب ہم جو لاسٹ پوائنٹ پڑھنے لگے ہیں دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ بیکاز دس پوائنٹ ہیز پلیڈ اے وائٹل اینڈ امپارٹنٹ رول ان آور لائفس. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں، ہم کرتے ہیں، وہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے سوچوں سے ہوتا ہے، ہمارے رویوں سے ہوتا ہے. ہم جس چیز کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہی چیز کا ہم اظہار کرتے ہیں، اور اسی چیز کو، اسی سوچ کو لے کر کے ہم آگے پھر مختلف قسم کے عمل کرتے ہیں، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. یعنی ہماری ایکشنز جو ہوتے ہیں، ہمارے جو عمل ہوتے ہیں وہ ہماری سوچ کے جو ہے وہ تابع ہوتے ہیں. جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے ویسے ہی ہمارے عمل ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے لاسٹ پوائنٹ سٹارٹ کرنا ہے. یہ ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، ہمارے رویوں کے بارے میں کہ سائنس کے ذریعے سے ہم نے ماضی کی نسبت اپنے رویوں میں کیا بہتری پیدا کی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور مین پوائنٹ جس میں ڈسکس کیا جائے گا وہ یہ کہ سپر سچویشنز یا توہمات کیا چیز تھے اور ماضی میں ان کا کیا کردار رہا ہے، اب موجودہ دور میں ان کا کیا کردار ہے. کیا آیا یہ سپر سچویشنز جو ماضی کا حصہ تھے، ماضی کی زندگیوں کا، لوگوں کا حصہ تھے، کیا آیا وہ اب بھی لوگوں کی زندگیوں میں پائے جاتے ہیں، اپنا رول پلے کرتے ہیں یا پھر نہیں. تو لیٹس اسٹارٹ ود آور سینونیم. تو فرسٹ سینونیم جو ہے وہ آپ کا ہے، وہ ہے چام مین تعویذ یا پھر گھنٹا. نیکسٹ ورڈ از پریونٹ مین روکنا، باز رکھنا. اوورٹ اوائڈ، بال بار، چیک، سیو. نیکسٹ ورڈ از انوالو شامل ہونا، میننگ سے انکلیوڈ، کمپرائز، کنسسٹنٹ، کنٹین. نیکسٹ ورڈ از سپر سچویشن. سپر سچویشن کہتے ہیں توہمات کو، وہم کرنا، وہم کی جو مطلب ایک ہمارے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے. فالس بلیفس یعنی ہم غلط چیزوں پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں، غلط باتوں پر، غلط خیالات پر، غلط سوچوں پر، غلط علامات پر. تو یہ ساری چیزیں سپر سچویشنز یا فالس بلیفس کہلاتی ہیں.
better attitude, by an attitude we means the way we feel towards some idea or some event. यानी attitude की जो definition राइटर्स ने दी है वो ये है कि attitude या outlook या नुक्ते नज़र, रवैया, हमारी सोच, हमारा जो behavior होता है, जिस तरीके से हम behave कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये है the way, यानी वो तरीक़ाकार we feel towards some idea और some जो कि जिससे जो हम किसी ख़ास ख़यालात की तरफ के बारे में हम महसूस करें और सम इवेंट या किसी ख़ास वाक़ये के बारे में हम महसूस करें। यानी हम जब किसी ख़ास वाक़या जो हमारे इर्द गिर्द हो या कोई ख़ास सोच जो हम किसी की सुने या किसी की कोई ख़ास बात, उस पर जो हम अपना रिएक्शन शो करते हैं, हम अपना आउटलुक शो करते हैं, वो चीज़ एटीट्यूड कहलाती है। If a person believes that wearing some kind of a charm will prevent him from having bad luck, he will wear that charm and will feel uncomfortable without it. यानी मिसाल के तौर पर उन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा एक शख्स बिलीव करता है कि मैं एक तावीज़ ख़ास किस्म का ज़रूर पहनूँगा और क्योंकि ये तावीज़ मुझे जो है वो बचाएगा, मुझे किसी किस्म की बैड लक से, कोई मतलब बुरी बात के होने से मुझे ये बचाएगा, तो ही विल वेयर दैट चार्म, तो यकीनन वो वाला पहनेगा, वो चार्म पहनेगा, वो तावीज़ पहनेगा, एंड विल फील अनकम्फर्टेबल विदाउट इट। और अगर वो नहीं पहनेगा तो वो अपने आप को उसके बगैर अनकम्फर्टेबल फील करेगा, यानी बेचैन सा, अनईजी सा महसूस करेगा। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व fear such as this are called superstitions. So ऐसी वो तमाम तर फीलिंग्स, वो तमाम तर महसूसात जिसमें आपके अंदर कोई डर शामिल हो जाए, कोई खौफ शामिल हो जाए, कोई वहम शामिल हो जाए कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो ऐसे हो जाएगा, अगर मैंने ये काम ना किया तो शायद मेरे साथ ऐसा हो जाए। तो ये इस तरह के जितने भी खौफ हैं ये सुपर सिचुएशंस यानी ये फॉल्स बिलीफ या तो हिमात कहलाते हैं। सुपरस्टिशियस पीपल, और जो लोग इन सुपरस्टिशंस पर बिलीव करते हैं वो सुपरस्टिशियस पीपल या तो हिम परस्त लोग कहलाते हैं। एंड दे बिलीव इन द साइंस ऑफ गुड और बैड लक, और ये लोग वो लोग होते हैं जो कि अच्छे और बुरे जो ख़ास तौर पर बैड लक और गुड लक के साइंस पर यकीन रखते हैं। एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइन, और उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं इस तरह के अच्छे बुरे साइंस को देख के। अच्छा, यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल भी दूंगी। अभी भी यानी हमारे माशरे में अभी भी इस तरह के कंसेप्ट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि घर से बाहर निकल रहे हो तो बिल्ली रास्ता काट जाए, काली बिल्ली, तो फिर आपको चाहिए कि आप सफ़र को छोड़ दें। इसी तरीके से दूध का जो है वो गिर जाना अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरीके से कहा जाता है कि घर की मंडेर पर अगर कौवा बोले तो वो इसका मतलब होता है कि कोई मेहमान आने वाला है। तो ये चंद वो पर्टिकुलर किस्म के सुपरस्टिशियस किस्म के ख़यालात हैं जो स्टिल एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। तो ये मैंने इन एग्जांपल्स इसके साथ मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया है कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। और उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लॉजिकली नहीं सोचते, हम मंतकी अंदाज में नहीं सोचते, हम बस चंद बातें हैं जो कि मतलब हमारे बड़ों से चली आ रही हैं तो हम अभी भी उन पर यकीन करते हैं, ये सोचे बगैर भाई ये आखिर कैसे यानी इनका आगाज़ हुआ, आखिर ये तोहम परस्ताना बातें हमारे माशरे में कैसे आई हैं। बजाय ये कि हम सिस्टमेटिकली सोचें, बजाय ये कि हम लॉजिकली सोचें, क्रिटिकली सोचें, तो हम अभी भी यानी चंद चीज़ों को लेकर चलते हैं। हमारे माशरे में ऐसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आगे आप देखिए सिनोनिम्स है इन्फ्लुएंस्ड मीन मुतासिर होना मीनिंग्स है अफेक्टेड, कंट्रोल्ड, डायरेक्टेड, काउंटेड और इम्पेल्ड। उससे पहले एक वर्ड रह गया था साइन मीन अलामत, क्ल्यू, एविडेंस, हिंट, इंडिकेशन, मार्क, नोट। थर्ड वर्ड है ओवरकम का मतलब है गालिब आना, बी विक्टोरियस, कंक्वर, डिफीट, मास्टर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वो है डेमोन्स्ट्रेट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब है इजहार करना, शो करना, दिखाना। मीनिंग्स हैं डिस्प्ले, एस्टैब्लिश, एग्जिबिट, इंडिकेट, मैनिफेस्ट, प्रूव, एक्सप्लेन। नेक्स्ट वर्ड इज साउंड मीन ठोस। मीनिंग्स हैं फिल्म, सॉलिड, क्रैक्ड, फेयर, जस्ट, लॉजिकल, प्रॉपर।
सो सुपरस्टिशियस जिसका हमने पढ़ा था, फॉल्स नोशंस, फॉल्स फीलिंग्स, फॉल्स थॉट्स, या जिनको इलॉजिकल भी कहते हैं। इलॉजिकल ये अपोजिट है लॉजिक का। लॉजिक कहते हैं वो चीज़ जिसको आपकी अक्ल जो है वो साबित कर सके, तो इलॉजिकल उसके अपोजिट है, जिसका मतलब है कि वो बातें जिनको अक्ल से साबित ना किया जा सके, जिनको साइंसी तालीम से साबित ना किया जा सके। तो वो कहते हैं कि जो सुपरस्टिशियस या इलॉजिकल बिलीफ्स होते हैं आर बीइंग ओवरकम, इन पर काबू पाया जा सकता है बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीके के इस्तेमाल करके, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज़ नो साउंड बेसिस फॉर देम, क्योंकि साइंस की तालीमात हैं जो इस चीज़ को साबित करती हैं कि ऐसे जितने भी गलत किस्म के ख्यालात जो हमारे माशरों में डेवलप हो चुके हैं इनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं होती। फ्यू पीपल टुडे बिलीव दैट डिजीज़ आर कॉज्ड बाय ईवल स्पिरिट्स। वो कहते हैं कि माजी की बात तो छोड़ें, माजी में तो बहुत से लोग इस बात पर बिलीव करते थे कि जो बीमारियां हैं ये बदरूहों के असरात की वजह से होती हैं, लेकिन अब बहुत कम लोग इस बात पर बिलीव करते हैं दैट डिजीज़ आर कॉज्ड बाय ईवल स्पिरिट्स के जो बीमारियां हैं वो बदरूहों की वजह से होती हैं। दो एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग यह है, यहाँ पर ज़रा देखें डिटेल में बताया गया है, ब्रैकेट्स में गौर से देख लें। स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन मैन, यानी कि सितारों के असरात का मुताला, यानी सितारे किस तरीके से इंसान पर अपने असरात डालते हैं, इसके मुताले को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, या उर्दू में इल्म नजूम। और एंड फॉर्चून टेलिंग, या फिर मुस्तकबिल का हाल बताना, यानी दो चीज़ें हैं जो कि माजी में तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब हैं अभी भी, लेकिन उसकी निस्बत कम है। ये दो चीज़ें क्या हैं, एक तो है एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम, और दूसरा है फॉर्चून टेलिंग यानी मुस्तकबिल का हाल बताना। आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, अभी भी ये राइजुल अमल हैं, यानी अभी भी ये प्रैक्टिस की जाती हैं, इन पर इनको ये हमारे माशरे में मौजूद हैं। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड, लेकिन फ़र्क क्या है माजी से और अब में फ़र्क क्या है? अब ये है कि अब ये इतने लोगों को मुतासर नहीं करती, इतने लोगों की ज़िंदगियों को ये दोनों चीज़ें मुतासर नहीं करती जितना कि माजी में क्या करती थी। इट हैज़ बीन लर्नड दैट देयर इज़ ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स टू पीपल, क्योंकि इसकी वजह है इट हैज़ बीन लर्नड, अब हमें ये मालूम हो चुका है कि देयर इज़ ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीज़न, कि हमेशा एक अच्छा फितरी जो है वो एक सबब, एक वजह मौजूद होती है फॉर एवरीथिंग, हर काम के लिए, दैट हैपन्स टू पीपल, यानी हर काम लोगों को हर काम जो लोगों के को दरपेश होता है उसकी कोई ना कोई फितरी वजह ज़रूर होती है। ये बात साइंस ने अप्रूव की है एज ए रिज़ल्ट, जिसकी वजह से मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फेयर, अब ज़्यादातर लोग नहीं डरते किन चीज़ों से, ब्लैक कैट से, जी बिल्कुल, ब्रोकन मिरर से, यानी शीशे का टूट जाना भी अच्छा शुगर नहीं समझा जाता था। एंड नंबर 13, हाँ जी बिल्कुल, कि 13 नंबर के हिस्से को बहुत ही मनहूस तस्वर किया जाता था, लेकिन अब बहुत फ़र्क है, अब लोग इतने इन चीज़ों से नहीं डरते। बाय द साइंटिफिक मेथड इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, कि साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से ये बात साबित हो चुकी है। डेमोन्स्ट्रेटेड मीन प्रूव्ड, साबित हो जाना, दैट आइडियाज़ आर नॉट नेसेसरली ट्रू, के हर ख्यालात जो कि हम जिनको रासिख कर लेते हैं, जिनको हम पक्का कर लेते हैं, आर नॉट नेसेसरली ट्रू, ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चे भी हों, बिकॉज दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनको सच्चा क्यों समझा जाता है? क्योंकि बहुत अरसे से उनको सच्चा समझा चला आ रहा होता है। आइडियाज़ मस्ट नॉट बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, अब वही आइडियाज़, वही ख्यालात ही काबिल कबूल होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं, जो कि हक़ाइक़ से साबित होते हैं, इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल टू द साइंटिस्ट, जो कि साइंसदान जिनको कबूल करते हैं, और द पीपल हु यूज़ द साइंटिफिक मेथड, या जिनको वो लोग कबूल कर लेते हैं जो कि साइंसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हैं, तो वो वही ख्यालात ही सही होते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग देखें आप लोग। डिस्कवरी मीन दरियाफ्त, डिटेक्शन, डिस्क्लोजर, उसके बाद है
exploration, findings, location, revelation. Next word है develop. Develop mean पैदा करना. Cultivate, evolve, foster, mature या फिर promote. Next word है open mindedness mean वसीओ ज़हनी, यानी ज़हनी वुसत जिसको हम बोलते हैं. broad mindedness, dispassionateness, enlightenment, rationality, liberality, reasonableness या फिर tolerance. Next word is willing. Willing mean रजामंद होना. agreed, ready, compliant, consenting या फिर content और eager. Next word है आप लोगों का assume, इसका मतलब है फर्ज करना. presume, suppose, believe, accept, एक्सपेक्ट या फिर फीन. नेक्स्ट वर्ड इज लाइकली. लाइकली मीन रुझान रखना. मीनिंग्स है एप्ट, डिस्पोज्ड, एक्सपेक्टेड, इंक्लाइन और प्रॉन. नेक्स्ट वर्ड है कंक्लूजन. कंक्लूजन का मतलब होता है नतीजा. बहुत सारे मीनिंग्स इसके लिखे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग देख लें. रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, completion, outcome, judgment, verdict, final closing, concluding, eventual, ultimate, decided, decisive या फिर definite. जी, the discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open mindedness. यानी जिस तरीके से एक तो साइंसदानों ने रिजेक्ट किया है किन चीज़ों को, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को, उन तमाम फॉल्स नोशंस को जो तोहिमात के मायनों में आते थे या जो हम समझते थे कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा. एक तो साइंसदानों ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है. दूसरा साइंसदानों ने कहा है कि सिर्फ वही आइडियाज़ एक्सेप्ट करने चाहिए जिनको साइंस और साइंटिफिक मेथड जो है वो साबित करे. और तीसरी चीज़ जो है वो साइंसदानों ने जो साइंसी तरीक़ाकार की मदद से हमारे अंदर पैदा करने की कोशिश की है वो है अ फीलिंग और एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस, कि हम एक वसी और नज़री, एक फ़राख दिलाना किस्म का एक रवैया अपने अंदर जो है वो पैदा करें. दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स देन टू assume that what has been considered true will always be true. यानी अब उनका ये है कि वो नए नए हक़ाइक़ की तलाश में होते हैं, बजाय ये कि जो पहले से मौजूद हक़ाइक़ हैं वो जैसे जिस तरह हैं उनको वैसे ही सच मान लें, सच तस्वुर कर लें. बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज़ एज ए रिज़ल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज़. क्योंकि लोग अब लोगों को तब्दील करना पड़ रहे हैं नई डिस्कवरीज़ की वजह से अपने ये पुराने ख़यालात. तो मेड बाय साइंटिस्ट, जो ख़ास तौर पर साइंसदानों ने यानी जो नई डिस्कवरीज़ की हैं उनकी वजह से उनको अपने पुराने ख़यालात अब छोड़ने पड़ रहे हैं. दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन्स एज फाइनल. तो उनके अंदर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आ रही है कि कोई भी नतीजा हो किसी भी चीज़ का, किसी वाक़ये का, किसी इवेंट का, किसी डिस्कवरी का भी, इवन कोई नई साइंसी तहकीकात हुई हो उसके नताइज हों, तो वो उनको फ़ाइनल या हतमी तस्वर नहीं करते. तो ये था आप लोगों का यूजिंग द साइंटिफिक मेथड ऐसे, जो आप लोगों का सेकेंड ऐसे था आप लोगों की बुक का, एसेस वाली बुक का, जिसमें आपने ये देखा, बल्कि हम सब ने ये चीज़ देखी कि हमारे इर्द गिर्द की पूरी जो हमारी दुनिया है, जो हमारा माशरा है, जो शहर है जहाँ हम एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उसकी एक एक चीज़ जो है हमारी सराउंडिंग में मौजूद एक एक चीज़ जो है उसमें अब साइंस का अमल दखल इतने हद तक बढ़ चुका है कि अब हमारी ज़िंदगियाँ इन चीज़ों के बग़ैर नामुकम्मल है. और जो है वो हम ये कोशिश करें कि ये रवैये, ये सोचें हम अपने अंदर पैदा करें, एक ओपन माइंडेडनेस का रवैया हम अपने अंदर पैदा करें, ताकि हम लोगों का शुमार भी एजुकेटेड और लॉजिकल लोगों में हो सके. हम लोग भी अपने अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा कर सके. हम लोग भी हर चीज़ को सतही तौर पर जो है वो कबूल ना करें, बल्कि हर चीज़ को पूरे तरीके से छानबीन करें और फिर हम इसको एक्सेप्ट करें. तो ये था बेटा आप लोगों का लास्ट लेक्चर. आज मैं इसके साथ आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जो एक्सरसाइज वाले हैं पोस्ट कर दूंगी, और उससे अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी. तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़.